from Prayagraj, so it has a very strong Hindi writing culture. Munshi Premchand and everything. I was sitting in the Allahabad Museum का library. And ऐसे मैं बस बैठी हूँ कि आज तो मीटिंग हो गई and I'm like मैं राइटर्स के नाम ले रही थी and आपको कौन पसंद है, उर्दू की बात हो रही थी. तो मेरा एक शेर में ऐसे बोलती थी कि हंसी इतनी हो चंदा, सुनी आंखों का ख्वाब लगती हो, तुम तैयार जैसे भी हो, इन आंखों को लाजवाब लगती. So this I wrote for my best friend last to last like 2020-21. मेरे को ऐसा मस्त ये पढ़ूंगी and वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ऐसे करके बस आज तो पढ़ के आऊंगी ऐसा. I used to write very less शेर at that time because I was learning उर्दू vocabulary. अब तो पूरी poems I write in उर्दू, but ऐसा काफिया मिलाना, नुक्ते लगाना, ये सब कुछ नहीं आता था. मैं मस्त ऐसा बैठी हूँ एंड मैंने एक बहुत बड़े राइटर का नाम ही गलत ले लिया. वो टेबल पे लिखते हैं. अब नए में भी मैंने लिटरेचर में स्टेप किया, मैं देखूं इतने बड़े बड़े राइटर्स, एकदम पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एंड देवदत्त पटनायक, ये किधर मैं किधर अंडरग्राउंड. फिर देन आई रियलाइज्ड कि अगेन डू आई राइट फॉर पीपल और डू आई राइट बिकॉज आई हैव अ थॉट. Too much detailing. At one point you feel like you have to just bheg do. You will not want to read. You will get so bored. But at the end, all of that will combine into an ending that I don't want to talk about. नहीं तो सब मेरे को मारेंगे. Because the suspense is in the ending. And 2-3. So I wanted to summarize the entire Gita in 3 chapters. So the first part is ready, where Krishna is pushing Arjun to pick up the weapons and fight. उस पे it is a poem of around 4 to 5 pages. कि मतलब तुमको क्या लगता है, दुर्योधन ने तुम्हारे साथ सही किया और दुशासन ने तुम्हारे साथ सही किया, शकुनी तो ऐसे थे, गांधारी तो वैसी थी. एक एक उसमें 4-4 लाइन्स में you will understand the entire Mahabharata. Why is Krishna so much on side of Arjun? सिमिलरली थर्ड पार्ट में हम उनका विश्व रूप देखते हैं. तो जैसे यू कैन नॉट इमेजिन हाउ लार्ज कृष्णा इज, बट वो उसमें अर्जुन को अपना बड़ा विकराल रूप दिखाते हैं. वो कहते हैं कि मेरे इतने हाथ हैं, मेरे इतने पैर हैं, मेरे नाभि में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मेरे इतने ज्यादा सिर हैं, जो भी तुम देख रहे हो वो सब मैं हूँ. एंड दैट वाज समथिंग दैट इज माय बेस्ट इमेजिनेटिव वर्क टिल डेट, बिकॉज आई इमेजिन्ड इट द वे आई हैव हर्ड इट थ्रू द जनरेशंस. जैसे ऋषि मुनियों ने कहा, जैसे मेरे घर के आसपास साधु बाबा कुंभ में, महाकुंभ में, सब इतना सुन के लाइक कुछ तो ऐसे ही दिखते होंगे. एंड व्हाट वाज दैट? इट्स वन हेल ऑफ अ पोएम. और इतनी अच्छी हो गई कि बीच का पार्ट मैं खा गई. उसकी वही राइटर्स ब्लॉक इज लिजिट शोइंग अप 6 months. आई हैव नो क्लू मैं कैसे लिखूंगी वो. So hello everyone, welcome to this amazing episode of Kya Hal Chal podcast powered by Bazuki Perfumes, and today we are having Bazuki Perfumes as our gifting partners. Bazuki Perfumes are perfumes which are one of a kind. They are having a great smell, they feel great, they look great, they smell great, and yes, to everyone I'll definitely suggest you to try it once. So with that, let's welcome our today's guest. Hello Ratnapriya, welcome to Kya Hal Chal, and the very first question is, what's your hal chal? Interested, maybe that is the right word. So I've been really interested in speaking, like public speaking, for a while now. It's been almost 7 to 8 years I've been speaking on stage. But apart from that, I think the day we signed this till the day I was like legit here, it was, there is this spark of curiosity where you want to be here. And now that I'm finally here, of course, this smells really good. I was about to ask you, nevertheless. But yeah, I'm good. How are you? I'm also all good, and I'm really very excited for this interview, for this conversation, because I'll be honest, I have been very curious about knowing an author and their mindset. If you ask me why, because I feel that they're having that great sense of imagination. Like, they are very imaginative. And
they have stories that goes beyond our normal human feelings. They are not meant to be sometimes logical, but what they are is they reach to your heart. They speak and they make you feel such in like they make you feel a way which I can't even express in words. It makes you feel like you are in a completely different world, and it disconnects you, but it also makes you realize your own self. सो विद दैट बीइंग सेड, आज की हम शुरुआत इसी नोट पे करना चाहेंगे. टुडे आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ डू यू इमेजिन, हाउ डू यू राइट, एंड हाउ डू यू ब्रिंग दैट इमेजिनेशन ऑन पेपर. सो उसी के साथ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट when did you realize कि हाँ I want to write my imagination on paper, मैं author बनना चाहती हूँ, मैं I want to write something basically, और मैं अपनी imagination को, अपनी सोच को मैं इस कागज के पन्नों पे लाके सबको पढ़ाना चाहती हूँ, सबको पहुंचाना चाहती हूँ अपने विचार. ये आपने कब सोचा, एंड उसकी कोई कहानी थी, कुछ किस्सा था, या just it happened? I want to know about that. I'm glad you asked because it is a very funny story. So back in 2000, wait, be with me please. 14. So back in 2014, I went to Akashvani, like All India Radios, for instruments. So I had a show there, and there are those random children who are just sitting and playing, and barely anybody listens to their show, but they are just in their own world. I went specifically for music, like as a musician, but it so happened that they needed somebody to, as a backing person who just speaks something. So there was another show going on, and they were like, we are in search of this child artist. Ours is on a leave, so we don't have any right now. And I was really excited. I was like, मैं करूँगी, मम्मी मुझे जाना है, and this and that. And I stood in front of the camera and I was like, मतलब वो होता है ना on air off air का concept होता है. So it went on air, and ऐसे there was this, they have hanging mics. We don't have standing mics because वो उससे आवाज आती है. And वो ऐसे खड़ा था, and मैं उसमें बोल रही हूँ कि राम जी ने ऐसा कहा था कि उनकी कहानी के हिसाब से, and ऐसे I had to narrate a very small story. They gave it to me on a paper, and they loved my voice. Oh wow. And I was in class 4th, so very very young, 9-8-year-old child. I was like, अरे वाह, इन्हें तो आवाज पसंद आ गई. और mother was like कि नहीं, उसको बोलना पसंद है, and these people just say कि आप इसको next month दोबारा लेके आना, we are having this show. So for 1 month, 2 month, 3 month, I worked there for free. Random shows, पीछे बच्चे खिलखिलाती हुई आवाज, and very small roles I had. Then one day I was telling this घर की कहानी to one of our DGs. So this person just went to his office and मेरे को लेके बैठे, आओ बेटा, आपने अपने बारे में तो कभी कुछ बताया ही नहीं है, ऐसे. And I started telling him this story. And he's like, wow, you're amazing storyteller. अब मेरे को तो storyteller का spelling भी नहीं आता था तभी तक. और मम्मी कहती है नहीं, इसको बात करना बहुत पसंद है, ऐसे करे. And 1 or 2 years down the lane, this woman जो next वहाँ की head थी, she calls me and she's like, we want you to write a small story from your perspective. Okay. So narrate a small incident where you felt like a god. And I was like, मैं तो घर जाके क्या लिखूँगी, बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं ना बच्चे, मैं घर जाके लिख रही हूँ कि मेरे को घर में ऐसे जगराता था, मुझे माता रानी बनाया गया, legit felt like a god and this and that. मैंने बहुत बढ़िया लिखा. And I went on the office and मैं ऐसा खड़ी हूँ and I'm like speaking. सब मेरे पैर छू रहे थे, सबने मेरे को फूल चढ़ाया, ऐसा किया वैसा किया. एंड माय मदर वाज गिवन सो मच अप्रिसिएशन कि मामा आपने क्या लिखा है. मम्मी इसलिए कि मैंने नहीं लिखा है, उसी ने लिखा है जिसने बोला है. एंड एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड, चिल्ड्रन डोंट राइट लाइक दिस. एंड वो टाइम था वेयर आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016-17ish. So I started writing for Akashvani, All India Radios. And also as a playback artist, I started working there. So I worked there for 3 to 4 years on a payment basis. तो मैंने job किया फिर particularly. तब तक मैं बड़ी हो गई थी, फिर 10th आ गया, so I had to leave. So that was the story behind writing. That my mother got to know कि भाई नहीं अच्छा लिख सकती है ऐसा. Wow. उसके बाद फिर लॉकडाउन सब बंद हो गया. And my mother was like, she got COVID. तो उनको ऐसा था कि do something that makes me inspired to get up from the bed. So she used to every morning give me a small title and I had to write a poem.
It can be 4 lines, it can be 1 page, it can be 10 pages, but I have to write something by the end of the day because वो तो पूरा quarantine में थी. And that was the time when I realized कि मेरा imagination किसी भी aspect में बहुत ज़्यादा तेज भागता है. Okay. And उन्होंने मेरे को topics दिए, random topics like a spoon, like my चाचा, my mama, my जीजू. And then she's like, उसका birthday तो लिखो, उसका birthday तो लिखो. And random morning she's like looking outside the window, she's like, पर्दा दिख रहा है, पर्दे पे लिखो. यो पर्दे पे कैसे लिखूं? बट देन आई रोट एंड उसमें एक लाइन आती है कि मैंने पर्दे के बारे में लिखा कि आंखों पे पड़ जाता है जब पर्दा. दिस इज लाइक आई एम पैराफ्रेजिंग इट, इट्स इन अ लिरिक फॉर्म. बट उसमें सीन ये था कि आंखों पे पड़ जाता है तो इट ब्रिंग्स नॉन जस्टिस, इनजस्टिस. एंड अगर बहुत बड़े स्केल पे पड़ जाता है तो इट ब्रिंग्स एंटरटेनमेंट, लाइक बड़ा पर्दा, व्हाट यू कॉल मूवीज. सो आई रोट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्दे दैट आई सी अराउंड मी. And it was such a nice poem, and I started writing more than 50-55 poems. Hindi, English, Urdu, जो भी मिलता है अब तो सब लिखती हूँ. It's like that. Wow, what a sweet story. And it's like it's very interesting. You don't get to hear these things very often. Looks like straight from a storybook I'm hearing to this. So wow, and I can sense a proud mother. I mean, your mom must be so happy. बहुत खुश हुए होंगे वो. And yeah, I mean आज के दिन में ये चीज़, ऐसी जो कहानियां हैं ये हमें हर दफा सुनने को मिलती है नहीं. सो कहीं ना कहीं ये मतलब यही खूबसूरती है एक लेखक की जिंदगी की, कि आप जब भी लिखते हो उस लिखावट के पीछे जो कहानी है वो सुनने लायक होती है, कभी कविता या फिर जो लिखा है आपने उससे ज्यादा. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फेल्ट कि ये था. एंड आई मीन damn, that's interesting. No. That's very amazing. I'm like, मेरे तो like I remember I tried writing once. मैंने एक कविता लिखी थी अभी भी मेरे फोन में, and I narrated it to an audience. And the fact was that it was about the first love that I have in my life. And it's like कविता अच्छी थी and people liked it. बट उसके आगे फिर नहीं लिखी. इट्स लाइक सो आई वाज लाइक, बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव दैट एब्स्ट्रैक्ट सेंस ऑफ इमेजिनेशन. आपको वैसी सोच रखनी होती है कि हाँ सब कुछ दुनिया से ऊपर दुनिया से परे आपको एकदम सोचना होता है. आपको अपनी जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसका बेस्ट आपको निकाल के आपको पेपर पे लाना होता है. सो कहीं ना कहीं आई फील कि अभी वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर थोड़ी सी अभी है कम. So I didn't, as I said before starting this, I got a chance to explore a lot of fields, but stopped here. So that's why it kind of feels very relatable, because I remember कि starting से मैं writing में struggle बहुत करता, लेकिन जो writers की story सुनी है ना, damn, that's good, that's really good. So with that being said, also I think that writing now requires that imagination, and one thing that contributes to imagination in my opinion is nature. प्रकृति और कुदरत के पास आप जितना रहते हो ना उतना ही आप अपनी imagination को explore कर सकते हो. And I guess in your case also, if I'm not wrong, you have also volunteered for a lot of environmental projects as well. And I guess that's I don't know, like I just gave it a thought because I have worked in that sector, so I know कि उससे imagination पे आपके बहुत असर पड़ता है. So was that a contributing factor in your journey? Probably yes. Like in the last 3 years, तो बहुत ज़्यादा. Okay. So I am a person who is actively into meditation and spirituality. And when you practice spirituality, you need to have a guru, not necessarily a human. It can be an emotion, it can be nature, it can be anything around you that teaches you something. So I am an active follower of the universe in general. There are 5 elements in nature. So we go Bhumi, Agni, Akash, Vayu and Nadi, like Jal. So when you talk about nature, what are you talking about precisely? Are we talking about animals? Are we talking about plants and birds, flora, fauna, or the elements? I personally am very inclined to animals, but I learn a lot from the elements. Okay. So different poems that I write come from a different element. Love is something that needs to be free from all the foundations, so I rather go with the element air for those. Whenever I have to write something very upsetting or very sad, then I go with the element of water. Or something when I write एक कविता है मेरी, नारी तुम रुकना नहीं, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि एक तुम ही तो कण कण में हो, एक तुम ही तो हर क्षण में हो,
सब तुम्हें गिराना चाहेंगे पर तुम कभी झुकना नहीं, हे सृष्टि की आधारभूता नारी तुम रुकना नहीं। सो ये लिखते समय आपको ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि आपकी, इफ यू आर राइटिंग अग्रेसिव पोएट्री टुवर्ड्स द सोसाइटी, imagine that your pen is firing up and then you'll write fire. That is how it comes, because it's a sense that you are conveying something जो आपकी imagination से भी ऊपर जाना चाहिए. So the writing should always be bigger than the writer. That is the concept. So if you visualize yourself कि भाई आज तो एकदम क्या ही फाड़ू लिखना है, so not only the concept but also your imagination on the paper should be as fiery as the thought behind it. So of course it is very much inspired by nature. रही बात animals की, birds की, they give you a sense of peace. Not an inspiration particularly on my part, but yeah, they give you a sense of peace. बहुत सारा लिख रही हूँ, I'm on a hefty project and have a lot of work. If I'm sitting calmly and I'm like, ठीक है अभी क्या लिख सकते हैं, and if I have birds chirping around or say अच्छा सा ऑटम सा मौसम हो रहा है, so there is a poem Fallen Autumn Leaves वो मैंने ऑटम के टाइम पे लिखी थी. तो ऐसे you get inspired from these small things, of course. Wow. Yeah, I mean, I guess इन एलिमेंट्स के साथ आपका एक बहुत ही लाइक आई सेंस कि आपने उनको कहीं ना कहीं सब जगह से आपने लाइक यू हैव एक्सप्लोर्ड ईच वन ऑफ देम. एंड फॉर वाटर आई कैन रिलेट बिकॉज I think so, like I guess this I should be sharing this right now, but somewhere I hesitate, but okay, let's do it. Yes. So the thing is that I started this one project of mine named Jal. That was my project and I was the founder of it. Failed miserably, I'll be honest. Failed miserably because like the organization is running, that project is running, I'm not there as a founder. And that taught me so much about nature. About water specifically. When you said na water, you know, like signifies being upset, दुख को वो जताता है कहीं ना कहीं. ये मुझे लगता है कि आज के डेट पे सच भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पानी है जिसने हमें जीवन की कितनी सारी चीज़ें हमें आज दी है, बहुत सारी, इनफैक्ट यहाँ पे ही इतनी सारी स्टूडियो में इतनी सारी चीज़ें हैं जो इस पानी की वजह से. सो यस, सो द थिंग इज कि दिस वाटर, that one drop of water, that water in its whole is sad because it's not being treated the right way, despite of giving us so much. I agree. But then there are multiple interpretations for the same. आप अपनी आंखों से कौन सा पानी बहा रहे हैं? Are you overjoyed in your crying? Are you upset you are crying? Are you overexcited you are crying? Are you feeling lost you are crying? So for me, tears are the climax of all emotions. This is the title of my new poem. But yeah, tears are the climax of all emotions. We'll give it a good title later on. But the concept is where I will discuss actually that treating tears and, you know, connecting it to sadness is the wrong way to treat water in my eyes. Okay. Because it is the climax of all emotions. आप किसी भी भावना के चरम पे होंगे, you will end up crying. So where you are saying that yes, water is being mistreated, that's not wrong. That is actually very true. On a global stance, you're not wrong. But when it comes to writing, there can be multiple interpretations of water. No, that's true. I mean, I'm feeling that this podcast is going to be very deep. And I'm happy because it's spirituality. Because I'll be honest, I'm exploring that spirituality or I recently only have got into more meditation and stuff, because I have not been very much inclined towards it because मैं 9 से मैंने शुरू कर दिया था, मम्मी ने फोर्स करके कर दिया था, फिर बीच में छोड़ दिया था मैंने, because I thought कि सुबह जल्दी उठना पड़ता 4 बजे, और तो I was like not that extra effort. But right now with the life that I'm having, I guess it's a need, a necessity. So have started it somewhere. Now it's helping me. It will take some time, definitely. Eventually, I'll be discovering more about myself. But, you know, when I speak about Jal specifically, I think that elements give you learnings. One learning that I have got from Jal specifically is that बदलाव एक दिन में नहीं आता पर एक दिन जरूर आता है. That is like not a quote by, like when I say this quote, a lot of people will assume कि किसी महापुरुष ने कहा है. And I'll be honest, महापुरुष ने कहा है, and वो महापुरुष सामने ही बैठा है. So yes,
This is a very great way to plug in myself. But anyways, moving forward now, since we have started this podcast, now I'll let you guys know about this experiment. This not this experiment, the activity that we'll be doing. We are having these two diaries, and रतन भैया, I want you कि आप खोलो and that diary, and you write as we have discussed. You write during this podcast session. We'll be interacting with each other. We'll be writing down whatever we learn about each other from this conversation. And yes, in the final segments of the podcast, we'll be discussing it. And this is an interesting activity because it gets us to know a lot about each other, and it helps us understand the halchal of the person we are talking to, of our guest. So stay tuned to that because you'll get to know some really interesting things. And I think that this exercise is something that we should be doing. So yes, compliments our name. So yes. So okay, then now moving on. When people are, like, being an author is something that is very artistic. What convention? It's not something that is very regular. Not everyone does it. But जब भी हम कोई भी बच्चा ऑथर बनने के बारे में सोचता है, दे थिंक ऑफ इट एज सम सॉर्ट ऑफ हॉबी. Like professionally, people are full-time authors. They have worked really hard. They have done some really good jobs. And I guess books are a way through which you can, like, show your experiences. Like, जो experiences, like I learned this recently only, that आपके जो experiences है वो सिर्फ अकेले आपने नहीं लिए, but बहुत सारे लोगों ने लिए. And I guess books is a accumulation of all those things. So, but इस चीज़ को जो बुक के पीछे जो इंसान है उसकी वैल्यू आई गेस कहीं ना कहीं सोसाइटी में समझी नहीं जाती है. आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ऑथर्स को, लाइक, द वे दे शुड बी अप्रिशिएटेड इन आवर सोसाइटी राइट नाउ, दे आर नॉट बीइंग, एंड पीपल आर हैविंग, लाइक, दोस किड्स आर हैविंग दैट फियर कि नहीं यार ऑथर नहीं बनना, हम लोग एज एन ऑथर क्या करेंगे, व्हाट कंट्रीब्यूशन विल बी हैविंग, डू यू थिंक? अप्रिसिएशन वाले पार्ट पे यस, वी आर अप्रिशिएटेड वे लेस. There are multiple reasons behind it. Maybe because we are not able to reach the target audience very precisely. सबसे पहला reason यही है. अभी say if I publish something here and गुजरात की audience को वो नहीं पसंद आया, so not necessarily it is the fault of the Gujarati audience. Okay. There is a possibility that whatever I wrote might or might not have been very particular to them. अभी वही बुक अगर मैं न्यू जर्सी में रिलीज करती या फिर यहीं के किसी और स्टेट में से साउथ इंडिया में रिलीज करती तो बहुत फेमस हो जाती. बट आई थिंक पर्सनली अप्रिसिएशन इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव. इफ समबडी इज गिविंग यू अ वेरी क्रिटिकल फीडबैक बट इट इज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, तो भी इट इज अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन दैट एटलीस्ट पीपल रीड इट. इट इज अबाउट द रीच. Secondly, this is more in the case of commercial writing. So if you are writing books like Harry Potter and major books like जैसे J.K. Rowling लिखते हैं, तो it is meant to go viral. That is the main objective. But when you talk about more literary forms, the books which are majorly wrote, the books that you write just for yourself. कभी कभी आप कुछ ऐसा लिखते हो जो आपके दिमाग को परेशान कर रहा होता है, देन यू राइट इट एंड देन यू आर लाइक जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े, तो यू डोंट केयर. दैट इज अनदर थिंग. तो इफ दैट दोज कैटेगरी ऑफ बुक्स इफ दे डोंट गेट वायरल, देन द ऑथर माइट और माइट नॉट फील एज डिस्टर्ब. यू विल लाइक ठीक है चलो मेरे को तो शांति मिली लिख के. दिस इज मेजरली इन द केस ऑफ बायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफीज might not have that much of reach, but you write it for your own happiness. Then comes the third category, the aspiring writers. I personally call myself one of the aspiring writers because I do not know my threshold right now. I'm young, I'm writing, my writing is reaching people, but I don't know what is the maximum I want to go. तो मैं particularly grateful feel करूँगी even if 2 people read my book out of my friends and family. So my book crossed over 500 sellings, out of which 230, 250 I guess were family and friends. उसके आगे it was outsiders. Personally, this should be my first threshold कि मतलब बहुत चल गई. If I write my next book and it goes more viral, then I'll be more happier, conceptually speaking. But then if this one went 500 and मैंने vision 1500 का रखा था और ये 500 गई,
तो मैं जगह जगह जाके क्या बोलूंगी कि भाई ये तो कॉमर्शियल फेलियर है, पर क्या मैंने कॉमर्स के लिए लिखा? मैंने तो कॉमर्स के लिए लिखा ही नहीं था. सो दिस इज मोर ऑफ अ पर्सपेक्टिव बेस्ड डिस्कशन एंड डिपेंड करता है कि राइटर को क्या डिमांड है अपनी बुक से. It's like more of a motive based thing. क्या motive What है? target you are having with your book? What is your aspiration from the book? And also you mentioned about thing कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लिखना नहीं चाहते हो, but you like whatever the hell happens, I'll write it. And sometimes you have that kind of, you know, as Spider-Man says web blog, I say imagination block. कि वो आते नहीं वो ideas. So at that time, how do you, you know, like get yourself that inspiration? आप अपने आप को कैसे like उस point पे जब when you are writing something and you are in that phase where you are not getting anything, कुछ नहीं आया दिमाग में. Whereas I have encountered this with myself and in podcasting only itself कि कभी कभार ऐसा आता है कि क्या पूछूं मैं, what should I do unique in the podcast, what more can I add. So वैसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, and if yes then आप उसको कैसे tackle करते हो? So, if I'm not mistaken, I hope I'm not misguiding you, but this entire situation is actively known as a writer's block. Okay. As much as I'm recalling, it has a particular term known as a writer's block. Might be known as some other word, but मुझे इतना ही याद आ रहा है. So, the concept behind writer's block is when for a certain period of time, so usually there are writers that will write once in 3 months, 4 months, 5 months, once in a year, and it's a success. ठीक? Then there are writers who will write daily and then compile it and then get it published, be it a book or be it a compilation of poems. Then comes the writers जिनको ऐसा feel होता है that उनका जो usual time gap है, if I write once in 6 months और वो 6 months के बाहर जा रहा है time, like I've not written anything in since 8 months, 10 months, 1 year, or I write usually every day, but I have not written anything in 2 months, 3 months, 4 weeks. So this certain period outside of your strategic planning of writing is known as a writer's block. There is also a category of writers which is bound by creativity. तो वो writer's block नहीं बोलते हैं. And ऐसे writers वो होते हैं जो सिर्फ तभी लिखते हैं out of randomness जब उनको idea आए. So these are the people who are driven with their creativity and not exactly something known as imagination. आपको आइडिया आया, आपने अपना क्रिएटिव लिबर्टी यूज किया, आपने लिख डाला. 3-4 दिन बाद, 6-7 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको अगेन एक आइडिया आया, आपने लिख डाला. Then what exactly is the writer's block? It is when the writer himself feels कि अब लिखे हुए टाइम हो गया. मुझे पता है मैं 3 महीने में एक बार लिखती हूँ तो 3 महीने तक मैं शांत हूँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा. बट अगर मेरे को चौथा महीना लग जाए तो आई विल नो माई सेल्फ कि भाई अब तो टाइम हो गया लिखे हुए. दैट सिचुएशन इज अ राइटर्स ब्लॉक. एंड पर्टिकुलरली इन माई केस आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिविटी ड्रिवन राइटर. आई राइट व्हेन आई वांट टू राइट. मतलब इच्छा वाली बात है. यू टेल मी अ टॉपिक एंड मुझे बहुत पसंद आ गया, मैं रात तक लिख के दे दूंगी. यू गिव मी अ टॉपिक, मेरे को लग रहा है इससे कुछ बहुत ग्रैंड कर सकती हूँ मैं, तो आई विल टेक माई स्वीट टाइम कि मुझे 1 महीने बाद मिलना, मैं तुम्हें मास्टरपीस लिख के दूंगी. वरना इफ आई एम गोइंग थ्रू समवेयर एंड आई सी अ सिचुएशन, आई सी अ स्टोरी, आई सी दिस कि मेट्रो में कुछ हुआ, आई जस्ट क्विकली टाइप इट ऑन माई नोट्स, go write it somewhere, remove the digital footprint. I remove all my writings from the notes. I don't keep anything on my notes. I write it on the paper. I'm like, इसको polishing चाहिए. So keep the thought. Don't finalize the poem because you wrote it in a hurry. You can do better and you should know that. So I keep it as a thought. अब वो thought 1 दिन में, 4 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में polish हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने लिख दिया. So वन ऑफ द 100 ways जो आपको बहुत सक्सेसफुल राइटर्स बताएंगे टू यू नो गेट योर वे थ्रू द राइटर्स ब्लॉक इज टू जस्ट फाइंड द आइडिया. डोंट राइट इट. नहीं आ रहा दिमाग में, डोंट फोर्स योर सेल्फ. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट ऑन अ माइक एंड इफ आई एम नॉट एबल टू गेट द लाइन्स, आई विल ट्राई टू सराउंड माई सेल्फ विद एज मेनी माइक्स एज पॉसिबल. यू नो, लोगों के पॉडकास्ट देखना, लोगों को पोएट्री रिसाइट करते हुए देखना, छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, एंड छोटी 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 डिटेल्स से यू विल गेट दिस स्पार्क ऑफ एन आइडिया. बट एटलीस्ट राइट दैट 1 word डाउन. इट विल कीप यू, यू नो, क्यूरियस
कि भाई लिखना तो था, and it will become a 24/7 thought. You will keep on processing it until you end up writing about it. So write the idea down, even if you're not able to write the entire poetry. That's one thing about it is कि like I'll be very honest, you were saying कि आप surround कर लो अपने आप को. I guess one thing like I connected to that a bit because उस चीज को करने के लिए ना what I do is I take notes. I take like मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि I have like once I was working with Hardik Bhai only and we were going through some script. ठीक है. Now that he was narrating me the whole screenplay and everything, what I was doing was कि अब if I want to be focused, I take notes and साथ ही साथ I start doodling. Doodling might be about the screenplay, might be what I'm feeling about the whole thing. And वो चीज जो है ना, it kind of surround me with those pictures. I'm always surrounded कि कुछ उस moment पे idea आ जाए. That's my practice again. That's not something that it's like something that I am doing. And I guess that's and the concept behind it, being surrounded. I connected with that a lot because ये चीज तो मैंने कहीं ना कहीं अपने साथ ऑब्जर्व की है कि ये होता है, ये बहुत ज्यादा होता है. So that you have to be very very much surrounded. You have to research somewhere. You have to research about the topic, and you have to again get yourself surrounded. If I'm writing about books, I have to get involved in books. If I'm writing about spirituality, I have to meditate. I have to go down and understand every single thing. I have to talk to people who are into meditation like you and who are into spirituality and everything. So the point is कि ये एक बहुत strong चीज है, and I strongly believe कि if to all my listeners, I'll definitely suggest that do this in your life. Surround yourself with whatever you want because it's needed, it's necessary, and it makes you happy somewhere. And it also makes you feel not forced, but I'll say obliged to do that because you are somewhere being surrounded around those things. You are learning from them, and it's your right that you give that learning back to the society in some form, which I think writing is a very strong way to do, and so is speaking, I suppose, which we are doing. So yes. Now, who is your favorite writer? I want to know. I just want to know this because आपने as a writer you have your own stories, but there must be someone who is having his stories, and I can see that no. So I want to know. Firstly, I want to know what's the idea behind this. मेरे को ये जानना है. There has to be no controversy. इसका एक रीजन है. Okay. There are 1,000 big writers in the world. Agreed. Taking a name of one or two of them will be very controversial. I think I would like to elaborate on the concept of a favorite writer in that case. Okay. एक राइटर होता है जिसके जैसा आप लिखना चाहते हो, और एक राइटर वो होता है जिसको देख के आपको मालूम है कि आप उसके जैसा कभी नहीं लिख सकते. ये दो ही आपके फेवरेट होंगे. उसमें से एक आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है और एक आपका पार्ट टाइम जॉब बन जाता है क्योंकि आप उसको इतना रीड करते हो एंड दोनों ही केसेस में आई वुड लाइक टू से दिस दैट इंस्पिरेशन की जहां बात आती है, इफ यू आर न्यू टू राइटिंग, you're as much as you can. Okay. Don't get into reading, writing, or say don't get into reading very very hefty writers. उसका एक रीजन है. आप जब सुनोगे तो it will bring more ideas to you, but if you start reading writers very attentively, आपका स्टाइल उनके जैसा होने लगेगा. Okay. Your writing will get infused. सो बहुत उर्दू में हमारे यहाँ ऐसे राइटर्स हैं, शायर्स हैं, जैसे कि जॉन इलिया साहब हो गए, एंड देयर आर मल्टीपल अदर राइटर्स, बहुत लोग हैं, बट राहत इंदौरी साहब हैं. ये सब लिखते हैं तो इनका अपना बोलने का लहजा है, अपना लिखने का तरीका है. अगर मैं बहुत ज़्यादा जॉन इलिया पढ़ने लगूँ अपनी शायरियाँ लिखने के पहले, मैं बहुत ज़्यादा इंदौरी साहब पढ़ने लगूँ, या फिर मैं किसी एक राइटर में घुस जाऊं, यू विल एक्टिवली वॉच मी बिकमिंग द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन. एंड उसका रीजन यही है, आपका ब्रेन अभी नया है उस फील्ड में, एंड आप क्या कर रहे हो, आप उसको कंडीशन कर रहे हो कि भाई इसने तो क्या ही लिखा, एंड इन ऑर्डर टू फॉलो दैट पर्सन यू विल स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन. आपने अपनी इमेजिनेशन बांध ली. सो अगर आप ऐसे मुशायरे अटेंड करो, ऑफ कोर्स वहां बैठ के सुनो,
वाइब मैच करो वहां की, कि कहाँ वाह करना होता है, कहाँ इरशाद करना होता है, ये सब सीखो. एंड लर्न मोर अबाउट द वोकैब्युलरी पर से. डोंट ट्राई टू अडेप्ट टू अ राइटर. डोंट ट्राई टू फाइंड योर इंस्पिरेशन वेरी अर्ली ऑन. मोटिवेटिंग फैक्टर्स ढूंढो, इंस्पिरेशन नहीं, वरना आपकी राइटिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगी. Whereas your question, who is my personal favorite? I don't have a favorite. And that is because मुझे पता ही नहीं है कि मैंने आज तक कितने तरीके की राइटिंग्स पढ़ी हैं. देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आज आप मेरे को एक बुक सजेस्ट करो, मैं वो पढ़ूँ और वो राइटर मेरा फेवरेट राइटर हो जाए. सो फेवरेटिज्म इज वेरी इट्स टेम्पररी. या तो आपको वो राइटर एकदम अपनी लाइफ लगे कि भाई ये तो बंदा हमेशा रिलेटेबल ही लिखेगा. दैट्स अनदर थिंग, एंड आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड समबडी दैट पर्सनली येट. वरना आई थिंक आपको किसी का कुछ पसंद आता है, किसी का कुछ पसंद आता है. सो ओवर द इयर्स यू विल बिल्ड अ लाइकिंग बेस कि ये राइटर से ये राइटर तक 3-4 है जो मुझे बहुत पसंद है. बाकी आई प्रेफर हियरिंग टू अदर्स एज वेल. ऐसा. हु इज योर फेवरेट राइटर इफ यू हैव एनी? Now I'm saying because It's okay. It's like I read more of thrillers, and yes, I'm like मेरे को थोड़ा suspense life में adventure and suspense थोड़ा पसंद है. So I like I have books of various authors whom I like for example the best one that I like is Woman in the Window. It's just AJ Finn is like it's too much. It's too much of a build-up. You need to have a lot of patience. I'll be very honest. I read that book. Too much detailing. At one point, you'll feel like you have to just फेंक दो, उठा के फेंक दो. You will not want to read. You will get so bored. But at the end, all of that will combine into an ending that I don't want to talk about. नहीं तो सब मेरे को मारेंगे. Because the suspense is in the ending only. But yes, I guess when you said this, when you were saying this whole thing. एक मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो मुझे अभी भी याद है, विच आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, क्योंकि ये बहुत जब मैं एकदम लाइक टीनेज में एकदम आया ही था नया नया, एट दैट टाइम ओनली. आप टीनेज में आए थे? नहीं एकदम न्यू एडमिशन. नाउ आई एम अ रिटायर्ड टीनेजर, बट यस एट दैट टाइम आई रिमेम्बर आई वाज वेरी मच इनटू स्पीकिंग. मतलब अगेन बात करने का बड़ा शौक था, सो आई गॉट इनटू पब्लिक स्पीकिंग. एंड उस टाइम पे I got like people used to watch I don't know WWE and stuff. मैं बहुत संदीप महेश्वरी देखता था, मेरे क्लास में तो वो था. अब हाँ भाई I'm happy किसी ने वाह बोला, नहीं तो my friends, he is amazing in with all due respect, he's amazing. And but what happened with that कि अब मैं उनको देखता था, मैं उनका पूरा दिन मैं लूप पे उनके वीडियोस देखता था. मैं ऐसा हो गया था लाइक एट दैट टाइम माय पेरेंट्स वेर कीपिंग मी अवे फ्रॉम फोन अ लॉट. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वाज हैविंग माय ओन फोन वाज इन 11th. यस, माय पेरेंट्स आर वेरी सब्जेक्टिव अबाउट दिस कि फोन तो अभी इसको नहीं देंगे, दुनिया वैसे ही बहुत खराब है. नो. सो आई गॉट माय हैंड्स ऑन माय पर्सनल फोन 11th, बट इन 7th मेरे को अलाउ था मम्मी का फोन यूज करना. अब मैं देखता था संदीप महेश्वरी, क्या पर्सनालिटी है बंदे की. आई एम लाइक डैम, ही इज सो गुड एट स्टेज, ही जस्ट सेट्स द स्टेज ऑन फायर. एंड तब मैं पब्लिक स्पीकिंग का मेरे को बचपन से था थोड़ा शौक. एंड मैं बहुत इट्स बिन लॉन्ग इनफ आई गेस कि आई कैन से कि आई एम अ डिसेंट स्पीकर. बट यस, उस टाइम पे व्हेन आई सॉ हिम ना, आई था कि भाई मुझे ये इंसान बनना है. यू वांट टू आई वाज सो ऑब्सेस्ड एज यू सेड. आई वांटेड टू बी हिम. आई वाज नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, बट आई वाज लाइक कि मुझे यही बनना है. मैं चश्मा ऐसे पहन के एकदम ऐसा पर्सनालिटी में चेंजेस लाने लग गए. एंड देन देयर वाज दिस वन इंस्टेंस व्हेन आई रेड दिस बुक कॉल्ड 7 Habits of Highly Effective Teenagers by Sean Covey. Amazing book by the way. Yes, and no promotion intended, please. So the point is कि उस बुक को जब मैंने पढ़ा and I completed it, I told my teacher and she said to the principal कि इस बच्चे ने ये बुक पढ़ी है. Because at that time that book was some sort of a big deal कि हाँ इतना छोटा बच्चे ने सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ा है. Now what happened is, let's say we are sitting like this. In the same way I was sitting, on that side was principal ma'am. I was here, all her awards and stuff, everything. What happened was I was called to her office and I was sitting, as I said, the whole setup was like that. अब वो मुझे बिठाती बोलती है, you read this book? Yes ma'am. And she was impressed. She was like, oh, that's amazing. That's a good thing. Now she was talking to me. She was trying to get to know me. The next thing that she did was
ऑफ द चार्ट्स। क्या करती है वो अब कि उन्होंने एक कॉल लगाया, एक नंबर मिलाया, कॉल किया, बोला हाँ यहाँ पे सारे बच्चों को ले आओ। इन दैट आर्ट देयर वाज दिस स्मॉल लाइक ऑडिटोरियम काइंड ऑफ ऐसा थिंग जहाँ पे सारे बच्चों को बुला लिया। एंड शी सेड टू मी एक ऐसी चीज जिसके बाद मेरे पैरों तले जमीन हिलने वाली थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दैट मी एंड लेट मी टेल यू आई वाज इन 7th एट दैट टाइम। शी सेड मैंने 10th के सारे बच्चों को बुला लिया है फ्रॉम ऑल सेक्शंस, दे आर सिटिंग देयर, you have to take a session of this on this book, a PD session. And let me tell you this, I was not prepared, not at all. एंड अब मेरे अंदर तो वो संदीप महेश्वरी वाला ही चीज है कि हाँ मेरे को तो ऐसा ही बोल रहा है, आसान है, नो आई एम सॉरी, नो नॉट इजी इट वाज। आई वेंट, आई वाज लाइक मैंने कहा क्या ही हो जाएगा, ज्यादा तो जय माता दी जो होगा होगा। आई वाज लाइक हैविंग दैट एटीट्यूड एंड आई सॉ देम। I was like, dude, it's tough. I was sweating like something. I was like, ऐसे मैं बोल रहा था। I was I was fumbling a lot. I was not having that clarity in me कि भाई मुझे बोलना क्या है। I started speaking, कुछ करके हल्का हल्का करके somehow I spoke. Ma'am was standing beside me. उनको पता था कि ये होने वाला है, but still she did it. एंड आई गेस दैट वाज नीडेड बिकॉज उसने मेरे को एक अलग ही तरह का एक्सपोजर दे दिया। एंड नाउ आई एम आई लर्न मच मोर अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड उससे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी है। नेक्स्ट ईयर आई डिड द सेम थिंग विथ माई बैच विथ 8th स्टैंडर्ड एंड आई नील्ड इट। सो वो एक कहानी है। उस वक्त मैंने चेंज क्या किया, जैसे आपने कहा दैट आई स्टार्टेड टू गेट माई सेल्फ इंस्पायर्ड, नॉट टू बी मोटिवेटेड टू बी लाइक हिम और टू बी लाइक समवन। सो आई गेस ये एक एक्सपीरियंस, if I can say this to all of you, my experience. It happened with me. Maybe you are having different thoughts, but I strongly agree with her on this thing that it is. I am live example sitting over here. नहीं, मम्मी पापा कहते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत खराब, मम्मी पापा हम उससे ज्यादा खराब है। सो आई अग्री टू द फोन पार्ट ऑफ इट। मुझे भी बहुत बाद में मिला, क्यों ही मिला, बिकॉज अब हाथ से नहीं जाता। So if you have to go that way, you can also relate it to the fact that you get so addicted to something, say a writer, that you do not want to step out of his bubble and you get strained into his writing. So I was sitting in this writers meeting, and I am from Prayagraj, so it has a very strong Hindi writing culture, Munshi Premchand and everyone. I was sitting in the Allahabad Museum का library, एंड ऐसे मैं बस बैठी हूँ कि आज तो मीटिंग होगी ऐसा। एंड आई एम लाइक, मैं राइटर्स के नाम ले रही थी एंड आपको कौन पसंद है, उर्दू की बात हो रही थी। तो मेरा एक शेर मैं ऐसे बोलती थी कि हंसी इतनी हो चंदा, सुनी आंखों का ख्वाब लगती हो, तुम तैयार जैसे भी हो, इन आंखों को लाजवाब रखती हो। सो दिस आई रोट फॉर माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट लाइक 2020-21 में। मेरे को ऐसा मस्त, मैं फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, लाइक ये पढ़ूंगी वहाँ जाके, एंड वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं ऐसे करके बस आज तो पढ़ के आऊंगी ऐसा। आई यूज्ड टू राइट वेरी लेस शेर एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज लर्निंग उर्दू वोकैबुलरी। अब तो पूरी पोएम्स आई राइट इन उर्दू, बट ऐसा काफिया मिलाना, नुक्ते लगाना, ये सब कुछ नहीं आता था। मैं मस्त ऐसा बैठी हूँ एंड मैंने एक बहुत बड़े राइटर का नाम ही गलत ले लिया वो टेबल पे। अमेजिंग, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन हो तो ना हो, ऐसा ना हो प्लीज। एंड दैट वाज द डे एंड टुडे इज द डे। राइटर्स के नाम मैं लेना प्रेफर ही नहीं करती। आई एम सो स्केर्ड। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो गलती से भी नहीं मैं कान पकड़ में गई। मैंने इसीलिए नो किया था कि भाई मैं एक भी इंस्पायरिंग राइटर का नाम लेंगी मैं फंबल कर जाऊंगी, मेरा करियर बनने के पहले खत्म हो जाएगा। सो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। बट या, डोंट स्टे इन योर बबल, रीड एज मच एज यू कैन, बट अर्ली स्टेजेस में रीड लेस, लिसन मोर, इट विल स्ट्रांगली हेल्प यू एज अ राइटर। एंड यू डिड अ गुड थिंग। मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत, मतलब अब तो लाइक ऑथर्स के आई हैव प्रोनाउंस्ड नेम्स रॉन्ग, बट थैंकफुली इट वाज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, तो मैं बच गया टेक्निकली। ऐसा थोड़ा ऐसा
I'll be saying the secret, तो just थोड़ा British accent में बोल दो ना. अच्छा ब्रिटिश Like they were like I was having some time with Frederick Fawcett and stuff. कौन Frederick Fawcett. मैंने नहीं सुना. मैंने कुछ बोला ही नहीं. You know, the slip of tongue, mate. It just happens very often. So ऐसे like ऐसे आप बोल दोगे तो कम से कम आप बच जाओगे situation से. Like अच्छा he's trying to be funny. उनकी एक फेमस बुक बताएंगे प्लीज. The Day of the Jackal. Frederick Fawcett. हाँ. Frederick Fawcett. अब भाई मत मारना. मेरा लिसनिंग एबिलिटी भी आपके स्पीकिंग एबिलिटी के साथ चला गया. नहीं होगा. मैं माफी चाहता हूँ. I love that author. अगर गलत निकल गया मुझे मत. इसीलिए नहीं लेना चाहिए. राइटिंग का नाम लो. हम तो पॉडकास्ट. राइटिंग बिगर देन द राइटर इज आवर मोटो. हमें तो पब्लिसिटी चाहिए. यो मेरे को नहीं चाहिए. True fact. But the thing is that about. But yeah, that's the cool thing about being a writer, that you get to explore a lot of personalities, a lot of sides, and a lot of shades of different emotions, of different experiences, of different feelings. And I guess that's what makes every bit of story and every poem so unique. मतलब हर एक आई रिमेम्बर मैं वो एक कहानियां पढ़ता था महादेवी वर्मा की. उनकी एक थी गिल्लू. मेरी मम्मी मेरे को बताई थी लाइक शी इज वेरी गुड इन हिंदी. मैं I'm personally like I'm born in Delhi, but my family roots are very strongly connected with Bihar. So वो हिंदी वाला तो है ही बहुत ही ज्यादा. एक तो वही तो है. So एक मात्रा के लिए मेरे को घर पे डांट पड़ी है. एक मात्रा के लिए. पर मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत सुंदर हो गई डांट पड़ने से. 100 points to my parents. मेरी अब तो लिखे हुए काफी एक अरसा हो गया, बट भाई मैं हिंदी खूब लिखती हूँ इसीलिए. आई एम स्टिल इन प्रैक्टिस. सो माई प्रोजेक्ट्स लाइक रीसेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अ लॉट ऑफ माइथोलॉजी. सो इट वाज एन इनिशिएटिव लास्ट ईयर आफ्टर दिस बुक वाज अ सक्सेस. आई वाज लाइक कि भाई अब तो प्यार मोहब्बत तो लिखते ही रहते हैं लोग, कुछ नया लिखते हैं. अब नए में भी मैंने लिटरेचर में स्टेप किया. मैं देखूं इतने बड़े बड़े राइटर्स, एकदम पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एंड देवदत्त पटनायक, ये किधर मैं किधर अंडरग्राउंड. But then I realized कि again, do I write for people or do I write because I have a thought? So I started writing because I had a thought. तो एक आइडिया था कि भगवत गीता हमारी जनरेशन स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेगी. आई कम फ्रॉम प्रयागराज, तो मेरे यहाँ तो पूजा पाठ इतना चलता है. मेरी मम्मी बेटा आज तुमको मैं गीता सुनाती हूँ. माय मदर. मेरे को एक ये ऐसा इत्तेफाक से एक ये चीज मेरे साथ भी हुई है. घर में मैं जब भी अपने नानी गांव जाता था, रोज वो दुर्गा स्थान हमारा था. इतने पूजा हम लोग करते थे. मेरे छोटे भाई मेरे से ज्यादा अच्छे से उच्चारण कर रहे हैं. एंड आपकी एक मात्रा भी मैं ऐसे बोलना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम. पुष्टि में कौन सा शॉल लगता है वो गलत कर दूं मैं. तुम तो धर्म पे कलंक हो. अरे मैंने क्या किया. अरे गलत लिख दिया. सॉरी. मैं नहीं पढ़ूंगी आगे से. एंड दिस वाज माय आइडिया कि हमारी जनरेशन नहीं पढ़ती इतना. तो मैंने सोचा अगर मैं पोएम में लिखूं और मैं पोएम की स्टोरी टेलिंग करूं तो शायद लोग सुनेंगे. तो मेरी अभी 3 पोएम्स का पार्ट है वो. लाइक द एंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इन 3 पोएम्स एंड इट इज गीता वॉल्यूम 1, 2, 3. So I wanted to summarize the entire Gita in 3 chapters. So the first part is ready, where Krishna is pushing Arjun to pick up the weapons and fight. उसपे it is a poem of around 4 to 5 pages. कि मतलब तुमको क्या लगता है दुर्योधन ने तुम्हारे साथ सही किया और दुशासन ने तुम्हारे साथ सही किया. शकुनी तो ऐसे थे, गांधारी तो वैसी थी. एक उसमें 4 लाइन्स में यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर महाभारत. व्हाई इज कृष्ण सो मच ऑन साइड ऑफ अर्जुन. सिमिलरली थर्ड पार्ट में हम उनका विश्व रूप देखते हैं. तो जैसे यू कैन नॉट इमेजिन हाउ लार्ज कृष्णा इज, बट वो उसमें अर्जुन को अपना बड़ा विकराल रूप दिखाते हैं. वो कहते हैं कि मेरे इतने हाथ हैं, मेरे इतने पैर हैं, मेरे नाभि में अप्सराएं नृत्य कर रही है, मेरे इतने ज्यादा सिर हैं, जो भी तुम देख रहे हो वो सब मैं हूँ. एंड दैट वाज समथिंग दैट इज माय बेस्ट इमेजिनेटिव वर्क टिल डेट, बिकॉज आई इमेजिन्ड इट द वे आई हैव हर्ड इट थ्रू द जनरेशंस. जैसे ऋषि मुनियों ने कहा, जैसे मेरे घर के आसपास साधु बाबा कुंभ में, महाकुंभ में, सब इतना सुन के लाइक कुछ तो ऐसे ही दिखते होंगे. एंड व्हाट वाज दैट? इट्स वन हेल ऑफ अ पोएम. और इतनी अच्छी हो गई कि बीच का पार्ट मैं खा गई.
उसकी भाई राइटर्स ब्लॉक इज लिजिट शोइंग अप 6 months. I have no clue मैं कैसे लिखूंगी वो, but that will have all the summation of the messages that he has given. तो एक पोएम सिर्फ उनके मैसेजेस की, एक उनके विकराल स्वरूप की, और एक जिसमें वो अर्जुन को पुश कर रहे हैं. सो इवन इफ यू डोंट रीड द गीता, यू विल हैव एन ओवरव्यू कि एक्चुअली हो क्या रहा है, specifically between Krishna and Arjun. And that is where you bring the idea of your culture in. जैसे आपने बोला ना, ये we connected on यूपी बिहार का thing. It is not just यूपी बिहार, it is many small villages across the world जो अपने अपने कल्चर को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं. And we as teenagers, we as young adults, we have to take the initiative to find the right way to put our culture in front. Do you think writing is the right way to do that? Writing. मेरे लिए one of the best ways I've ever gone through. Also, another way I think is the way I dress up. I usually try to keep my dressing very Indian formal. So I have more than 30-35 kurtis and I usually wear kurtis एकदम दिन के हिसाब से color coordinated कपड़े रखे हैं मेरे. And उसका reason ये भी है, maybe because I like to dress that way, but partially also because I want to make this my identity. Not the clothes my identity, but my style my identity. I understand. People they misunderstand the concept of styling and clothing. कपड़े don't matter as much, the pattern of wearing matter more. तो अगर मैं हफ्ते में 1 या 2 बार वेस्टर्न कपड़े भी पहन रही हूँ तो it won't matter to me. But when I'm carrying my Indian aesthetic, it needs to look aesthetically pleasing. So that is one thing that I have on the back of my head. तो ये मेरा cultural root हो गया जो मेरी writing को बहुत influence कर रहा है. So of course, for me it is one of the best ways you can put front your culture. पता है, कृष्ण की एक चीज है जो मैं हमेशा मतलब अब मेरे को माइथोलॉजी में गीता का इतना ज्ञान नहीं है. हमारे घर में बहुत बात होती है पर मैंने कभी मतलब उसको मैंने सोचा कि एक जिंदगी का एक पहलू आता है ऐसा जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को जाना चाहिए, अब मुझे गीता पढ़नी चाहिए, अब मुझे अपने अंदर अपने आप को मतलब जानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए. तो मैं एक ऐसा किस्सा था कि उस टाइम पे मैं 12th की तैयारी कर रहा था, टू मच प्रेशर. मैं तब गया था इस्कॉन एंड मुझे उस वक्त कहा गया कि आप ना मेडिटेशन में आ जाओ. वो उनका प्रोग्राम होता है ना, ज्वाइन दैट. नाउ नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिस एंड आई गेस एवरीवन शुड डू इट. बट व्हाट हैपेंड वाज कि उस टाइम पे ना आई वाज लाइक उस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस कि हाँ ये करना है. आई गेस दिस इज द वे विच विल गेट मी टू सक्सेस. माय मॉम सेड वन रियली ग्रेट थिंग टू मी, दैट इज समथिंग दैट आई विल कैरी ऑन फॉर माय एंटायर लाइफ. एक चीज सिखाई थी उन्होंने कि बेटा जब आपको पता है शांति के राह तभी लेना चाहिए जब आपको शांति के पहले की कहानी आपकी पता हो. मतलब इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स टू से, बट इट्स लाइक शांति से पहले आपको सफलता के बारे में पता होना चाहिए. इफ दैट मेक सेंस. कि हम शांति के बारे में क्यों जानते हैं. ऋषि मुनि इतने शांत जो होते उससे पहले जो इतना मतलब अपने इसमें जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, दे गो इन ट्रांस, वो अपने आप को मतलब एकदम से ऋषि मुनि बनाते हैं. उससे पहले वो एक राजा होते हैं, उससे पहले वो एक बढ़ाता होते हैं, उससे पहले वो एक ऐसे इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी से कुछ सपने थे. और उन सपनों के पीछे जब आप भागते हो, उन सपनों को जब आप चाहते हो और जब आप उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी की मतलब अपनी सारी मेहनत लगाते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ मैंने मेहनत की है और शांति उस मेहनत का फल है. आप शांति की वैल्यू कहीं ना कहीं तभी समझ सकते हो, आप पीस की वैल्यू तभी समझ सकते हो जब आपने कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को चेज किया है. इट्स माई ओपिनियन ऑन दैट. नाउ एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. Peace, tranquility is a subject that is having perspective differently across all the continents. cultures for that Yes. matter. You're not wrong, and I think that is a very personal opinion of yours. People might agree, people might disagree. Because like I feel उस time पे मेरे को ये personal opinion why it happened is because my mom said कि you might find this very attractive कि हाँ है, but what I'll suggest, and she is so very much for meditation. She's like उनको she really likes it and she is having that, as you said ना कि कहीं ना कहीं आपके ड्रेसिंग से आपकी पर्सनालिटी का होता है.
My mom is like, she is very much into Indian aesthetics. Again, she also wears Western. She also is into stuff. But उनका वो ड्रेसिंग से ना, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनका जो मेन पर्सनालिटी है ना, वो सिर्फ वो उस इंडियन एस्थेटिक से ही आता है. एंड शी इज वेरी मच इनटू लाइक आई शी सेड टू मी कि मेरे घर में 7 साल 5 साल के बच्चे श्लोक अच्छे से बोल लेते हैं, एकदम क्लियर Correct. उच्चारण के साथ. Correct. I agree. एंड सो दैट्स आई गेस दैट्स वन थिंग. एंड उन्होंने यही चीज सिखाई कि बेटा शांति, पीस, भगवान का पूजा करना, ये सब बहुत अच्छी चीज है, बहुत पवित्र काम है. लेकिन उस पवित्रता की असली कीमत समझने के लिए तुम्हें पहले कुछ बनना होगा. तुम्हें कुछ बनना होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी में एक ही चीज की कमी है, वो है शांति. जो जिसके लिए एक सर्टेन एज पे ही आप उसको हो सके. क्योंकि बहुत से ऐसे, बुद्धा को भी देखो, वो पहले राजा थे, वही राजकुमार थे. कितने लोग थे ऐसे जिन्होंने अपनी जिंदगी पहले जी है, उसके बाद वो शांति के राह पे गए. दैट्स व्हाई वी हैव द बुक कॉल्ड द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, because he understood the concept of peace and then he sold his Ferrari. That's my interpretation. But again, it's open You know to about the concept of Mithila, right? Mithila. I am not exactly, but honestly, I am actually from that culture. I am Maithili only. I am from Bihar. You're I speak Maithili. Yes. तो हम Amazing. वाले- I love your language. मैथिली तो अगर हमारा आंटी ये सुनेंगी, आंटी आपको शाउट आउट. आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है. बिकॉज मिथिला में ऐसा कल्चर है कि आप लोग राम को पहले अपने जमाई की तरह, अपने दामाद की तरह देखते हैं. True. पढ़ा है भाई, मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आता है मुझको. सो आप पहले राम जी को अपने जमाई, अपने दामाद की तरह देखते हैं. आप उनकी नाक खींचते हैं, आप उनके कान खींचते हैं, आप उनको पूछते हैं कि मतलब तुम कहाँ थे रात भर, सीता को मिलने क्यों नहीं आए, ऐसे वैसे. यू नो द फैमिली बॉन्ड, I know, it is I know. very strong there. So very fond of listening to children trying to learn their culture. And of course the parents who are teaching this, they also should be appreciated for the same. एंड रही बात आपके मदर की, जो कॉन्सेप्ट आप जो लाना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझी आपके बातों से, इट इज दैट पहले आपको धर्म के हिसाब से कर्म करना पड़ता है. यू हैव टू डू अ सर्टेन जॉब एंड कंप्लीट इट विद ऑल योर राइट्स बिफोर यू गो इनटू दिस state of complete salvation in trance, which is not wrong, because your earthly duties are as important as your worldly duties, like after the world duties. एंड यहीं से हमारा कर्मा का कॉन्सेप्ट आता है. सो बहुत सारी लोकल स्टोरीज हैं. देर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ महाभारत, रामायण, भगवद गीता. एंड बहुत ही जो मेरे को ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड अ स्टोरी दैट आई एम रिकॉलिंग, कि हम लोग यूजुअली महाभारत रामायण को मिथ बोलते हैं. पीपल से दैट इट्स हिस्ट्री, पीपल से इट्स मिथ. तो ऐसे ही एक फोकलोर है हमारे यहाँ पे बहुत जो चलता है, कि कर्म की बात मैं कर रही हूँ स्पेसिफिकली यहाँ पे. that there was a debate that why is Krishna always siding Arjun. Now many concepts say कि वो धर्म के रक्षक थे, तो इसीलिए अर्जुन के साथ रहना पड़ा. Many concepts say that Pandavas were not wrong, that is why Krishna was with them. But then comes this out of the blue story, जो मैंने अभी तो काफी सारे interpretations में सुनी, कि इससे पिछले जन्म में राम जी ने, आपको सुग्रीव वाली का अगर वो पता हो डायनामिक, सो आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी नोइंग दिस, वरना अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. सो देयर इज द कॉन्सेप्ट दैट पहले के देवी देवताओं को और मनुष्यों को किसी पर्टिकुलर देवी देवता का सपोर्ट होता था. सो इट्स नोन एज द मून चाइल्ड और द सन चाइल्ड. यू नो, यू गेट पावर्ड बाय दैट गॉड. सो द कंसेप्ट इज दैट इससे पिछले कुल में, इससे पिछले युग में श्री राम ने वाली का वध किया सुग्रीव को बचाने के लिए. सो इट वाज सेड दैट वाली वाज पावर्ड बाय इंद्र, लॉर्ड इंद्र, एंड सुग्रीव वाज पावर्ड बाय लॉर्ड सूर्य इंद्र. ठीक है. सो ऐसा कहा गया कि राम जी ने वाली का सपोर्ट नहीं किया इंस्टेड ऑफ सुग्रीव. सो ही साइडेड विद सुग्रीव, मतलब द सन गॉड, एंड वेंट अगेंस्ट द इंद्र विच इज वाली. ठीक. इसके पैरेलल स्टोरी में हम दूसरे युग में देखते हैं कि जब कृष्ण, जो दूसरा अवतार है विष्णु का, जब कृष्ण आए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स, दिस टाइम ही साइडेड विथ द इंद्र गॉड, इंद्र के साइड के, इंस्टेड ऑफ द सूर्य गॉड. तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुग्रीव का साइड लिया, हु वॉज पावर्ड बाय सूर्य.
अब की बार उन्होंने अर्जुन का साइड लिया और उन्होंने सूर्य के पावर को कम किया. He killed Karna. He was supporting Bhim to kill Karna. He was supporting the Pandavas to kill Karna. उन्होंने अर्जुन का सपोर्ट किया अगेंस्ट कर्ण. तो आपने पहले इंद्र के अगेंस्ट गए सूर्य को बचाने के लिए, अगले युग में आप सूर्य के अगेंस्ट गए इंद्र को बचाने के लिए. बिकॉज इट इज सेड कि इनका कर्ण का जो कुंडल था और उनका जो कवच था वो इंद्र इनसे मांगने आए थे, बिकॉज ही वॉज द पावर गॉड बिहाइंड अर्जुन. तो वो वर्ल्ड का एक बैलेंस होता है. उन्होंने पिछले युग में क्या किया था, एक पार्टी को साइड करके दूसरे के अगेंस्ट गए थे. तो इस युग में क्या किया, जिस पार्टी के वो अगेंस्ट गए थे इस बार उनको सपोर्ट किया. सो दिस इज व्हाट धर्म टीचेस अस कि विष्णु के मल्टीपल अवतार विल ऑल्सो कीप इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड बैलेंस. कि पहले मैं ये कर चुका हूं तो अब की बार फॉर द सेक ऑफ बैलेंस आई विल हैव टू कोऑर्डिनेट वेल. वरना अभी भी अगर मैं इंद्र के अगेंस्ट हो जाऊं, अभी मैं अर्जुन को मार दूं यदि, या फिर इफ आई साइड विद द दुर्योधन एंड द क्लैन, it will be a very big imbalance and there is no way you can treat it later. वो और अधर्म का काम है. So these are the back stories that take you to the mainland and this is what the dharma will teach you and this is not something that you can learn entirely from the books. इसके लिए आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, लोकल्स को सुनना पड़ेगा, मिथिला वालों को सुनना पड़ेगा, प्रयागराज वालों को सुनना पड़ेगा, पीपल हु आर स्टिल रूटेड. वृंदावन जाइए, राधा कृष्ण की इतनी स्टोरीज आपको सुनने मिलेंगी. यू विल, आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स एंड देयर इज दिस वन स्टोरी वेयर राधा जी को मिलने के लिए कृष्ण जी एंड्स अप बिकमिंग अ गोपी टू बी विद हिम एंड दे सिंग दिस कि देखो कैसा है स्वांग रचाया, कान्हा चूड़ी पहन के आया. सो नाउ यू सी देयर इज अ स्टेट वेयर द गॉड हिमसेल्फ इज क्रॉस ड्रेसिंग. हम लोग आजकल कितना बुरा मानते हैं क्रॉस ड्रेसिंग को एंड अलग अलग तरीके के जेंडर्स को भी से कि भाई ये तो इससे दूर रहना है. बट आवर गॉड्स वर डूइंग दैट. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन शुड डू इट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सपोर्टिंग एनी कम्युनिटी, बट आप देखो, आप अपने कल्चर को रीड करो एंड देन आप उसके बारे में बात करो. ही ऑल्सो क्रॉस ड्रेस्ड. अब दैट वॉज आउट ऑफ लव, उन्हें राधा को मिलना था. बट आप जाइए वृंदावन, आप देखिए दे विल टॉक कि भाई वो कैसे घेर वाले कपड़े पहन के लटकी होली खेलते हैं, गुलाल की होली, फूल की होली, क्या नहीं करते. सो दैट इज कल्चर फॉर यू एंड इट ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस योर राइटिंग एज एन ऑथर. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर. कितनी सारी कहानियां मुझे याद आ गई जो बचपन में मेरी मम्मी सुनाया करती थी. एक हम लोग गाना गाते थे अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम. दैट सॉन्ग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी like culturally very beautiful and that wordings of it is amazing. एक तो वो, and I guess मैंने आपके अभी जितने भी हमारी बात हुई, मैंने एक चीज तो सीखी कि राइटिंग इज नॉट जस्ट समथिंग जिसको आप प्रोफेशन. हम लोग इतिहास जो है, हमारा इतिहास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, मैटर इज एग्जिस्टिंग एंड दे ऑल हैव देयर वे ऑफ showing history. We are having that. The writing is our way to show our history. हमारी जो इतिहास है वो सिर्फ मेरे ख्याल से दो चीज़ें जो ये कर सकती है. एक तो लिखना और एक कला, मतलब ड्राइंग करना, आर्ट. मिथिला आर्ट वाज समथिंग लाइक मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब बनाती थी. आई रिमेंबर देयर इज दिस वन टेबल क्लॉथ जिसके बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन थे. मेरे मम्मी से पूछता था आप बनाए कैसे हो ये. शी वॉज वेरी गुड एट इट, वेरी गुड. एंड शी इज लाइक मेरे को वही है कि एक तो है ये, दूसरा आपने जो कहानियां बताई, कितनी कहानियां मैंने देखा, मैंने मिथिला आर्ट के थ्रू मैंने वो कहानियां देखी है. देखी होंगी. एंड अभी आपने बोला ना कैसे बनाए हो मम्मी, लैंग्वेज. हमारे यहाँ भी हम लोग बनारस में जाते, कितने का लगाएंगे, कहाँ जाइएगा, कैसे खाइएगा, हम बोलते कत्ते जाइए. हाँ, एंड दैट इज योर लैंग्वेज फॉर यू एंड यू शुड प्राउडली कैरी योर लैंग्वेज. अभी आजकल मैंने देखा यहाँ पे गुजरात में, I'm not targeting Gujaratis. I'm very fond of Gujarat in general. मुझे बहुत पसंद है ये जगह. But बाकी जगह भी if you go to Maharashtra. I went to Delhi so many times. And कभी मैं बोल दूँ और कैसन बा नहीं है वो, अरे आप तो देहाती बोल रही हैं, अरे आप तो भोजपुरी हैं, आप तो बिहारी हैं. मैं एक मिनट, what do you want to say? Should I tell you कि अरे तुम तो गुजराती हटो या अरे तुम तो मराठी हो हटो? ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं हम आपको, because it's your language.
आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने वो हिंदी में लिखा, वो स्पष्ट हिंदी को परस्यू किया जो मेरे घर में बोली जाती रही होगी पहले. यू नेवर नो. अब हो गई है ना लैंग्वेज मिक्स. मेरे घर पे कोई देहाती नहीं बोलता, बट माई फादर इज इन अ ट्रैवलिंग जॉब, तो उनको कनपुरिया भी आती है, फिर इलाहाबादी भी आती है, फिर ठेठ देहाती भी आती है, आहा. उसमें से बनारसी भी आती है. एवरी डायलेक्ट इज डिफरेंट. बट वट आई ट्राई टू राइट इज एकदम स्पष्ट हिंदी, बिकॉज यू राइट माइथोलॉजी, सो यू शुड स्टिक टू दैट सर्टेन सेक्टर ऑफ हिंदी, not mix it with other dialects. Does not mean that I will not speak in my dialect. मुझे आप मिले, I noticed it. But then if you are meeting me and if you tell me कि भाई आप तो वहां से हो, तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ कि अरे तुम तो बिहारी हो. But then I need to remember that Nalanda University, I have to remember the oldest scriptures that you guys are, preserving. And I need to be very cautious of my words. Very cautious of my words. तुम्हारा कल्चर है, you should be carrying it forward. थोड़ा थोड़ा वर्ड्स में आएगा. मेरी गुजराती लोअर केस है. आई हैव फ्रेंड्स हु टेल मी दैट तुम तो लोअर केस में गुजराती बोले. हाँ, મને ગુજરાતી આવડે જ છે. पर why should I make the effort to learn your language 100% if you are not making any effort to learn my language 100%? ये मेरे दोस्तों को मुझे पसंद है लैंग्वेज. नो ऑफेंस टू द लैंग्वेज. आई लव गुजराती एंड मैंने उतने ही मन से एक्सेप्ट किया है. आई स्पीक अ लॉट ऑफ गुजराती. आई डिड पूरा नवरात्रि 2 years. वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेस. पर ये सामने वाले को भी एफर्ट लेना चाहिए टू लर्न योर लिटरेचर, योर ड्राइंग. वो मिथिला की पेंटिंग अलग होती है, वर्ली आर्ट अलग होती है. वृंदावन में आप घरों पे देखिए तो वो छोटी 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 कथाएं बना के रखते हैं कि कपड़ी चोरी करके भाग रहे हैं, पूतना वाला, ऑल द केसेस. सो इट्स लोकल स्टोरीज एंड यू शुड बी कैरिंग इट फॉरवर्ड. True. I mean, so many stories that I guess thanks to my family and to my cultural roots कि ये सब कितनी कहानियों से तो मेरे को इतनी सारी कहानियां याद आ रही है. And it's very refreshing to live those stories, to live those days. And मैं मेरे दोस्तों को भी ये बोलना चाहूँगा, जो मेरे सारे क्लास के दोस्त थे और जो मेरे को बोलते हैं ना कि ऐसा, मतलब पता है, देयर इज दिस वन थिंग कि अब मैं जब बोलता हूँ गुजराती, कहीं ना कहीं वो बिहारी टच आ ही जाता है, तो वो लोग इतना ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ हंसने लगते हैं. मैं क्या भाई, ट्राई तो करने तो बोलने का. હું બોલું છું ગુજરાતી, पर બધા લોકોને હસી આવે છે कि એ તમારા એક્સેન્ટ કેવી રીતે છે. अब मैं गलतियां भी कर रहा हूँ, आई नो आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड माय फ्रेंड्स वुड बी लाइक, बहुत पोक भी करेंगे जब ये एपिसोड पढ़ोगा. मैं माफी चाहता हूँ, बट आई एम लर्निंग, आई एम फ्लुएंट विद गुजराती. आई नो, मैं समझ सकता हूँ, आप जो बोलोगे सब समझ आएगा, बट बोलने में थोड़ा कच्चा हूँ. इतने सालों से रह रहा हूँ, बट अब सीख रहा हूँ, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, गेटिंग होल्ड ऑफ इट. But yes, it's I'm loving this conversation and I wish abhi to, like, there is so many things I want to know, but now we are almost at the end of this. And I'll be wrapping up with a few more questions. So one thing I want to know is कि अभी ये जितने भी हमने बात की, I zeroed down 2 things that you should be knowing about being a writer. First thing is something that I have from my personal experiences as well, and from listening to you also I have like confirmed it. I can say that सबसे ज्यादा जो बोलते ना, सबसे ज्यादा ताकतवर वर्ड जो है, मतलब इस ब्रह्मांड का सबसे ऐसा शक्तिशाली जो शब्द है, वो है मेरे ख्याल से संतुलन, बैलेंस. मतलब if the answer to everything is balance, everything, be it your personality, be it your writing, whatever you are showing, it should have a balance. चाहे हमारे कथाओं में भी ये चीज कही गई है कि अगर लालसा इतनी ज्यादा नहीं होती, अगर हमारे इमोशंस पे एक बैलेंस होता, कहीं ना कहीं शायद महाभारत नहीं होती. बैलेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल समुद्र मंथन. दोनों तरफ इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे भगवान हैं. देयर आर सो मेनी यक्ष, गंधर्व, और मतलब आप गिनते जाओ, इतनी अच्छी अच्छी साधु ऋषि एंटिटीज हैं. असुर ही क्यों चुने हमने? एग्जैक्टली. व्हाई असुर्स? क्यों नहीं हम लोगों ने देवी देवताओं को ही बुला लिया? बिकॉज यू नो दैट यू वांट दैट बैलेंस. आप अकेले नहीं चला सकते. अ गुड हैज टू हैव अ बैड हैज टू हैव अ गुड. यू कैन नॉट गो विद द कांसेप्ट ऑफ ऑल व्हाइट एंड ऑल ब्लैक. सो या, देयर कैन नॉट बी लाइट विदाउट डार्कनेस. लाइट की वैल्यू ही नहीं रहेगी फिर. सो ये, एंड आई गेस कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग में, जैसे आपने कहा कि मैं अपने लिए लिखती हूँ, मेरा जो मोटिव है उस पर लिखती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम एज अ राइटर, इट्स लाइक आवर ड्यूटी, आवर सोल ड्यूटी, की लालसा से नहीं लिखे,
जो लिखे दिल से लिखे, जो लिखे बैलेंस से लिखे, एंड एज योर बुक ऑल्सो से हार्ट से दिल तक, it's like you have to write from your heart. And I guess that obviously there is this one poem in your book, and its title is प्यार something करके, प्यार ना कम कर पाई, हाँ, एंड एक और भी था, ऐसे दो थे आई गेस जिसका, कोशिश की थी इतनी पर मैं प्यार ना हाँ, कम कर पाई, दो धारी तलवार था इश्क में ध्यान ना कम कर पाई. और it's like those poems are very like I have got it from some like मैं ऑनलाइन कहीं से ढूंढ रहा था, आई गेस थोड़ा बहुत मुझे मिल गया था, एंड आई एम लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज अबाउट टू बाय द बुक, बट वो बुक की जो डिलीवरी थी वो हमारे पॉडकास्ट के भी 2 दिन बाद की थी. आई एम लाइक अब कोई बात नहीं, बाद में पढ़ के बताना, डेफिनेटली इसके बाद तो एकदम भाई. अभी देखो, आई एम नॉट अ कमर्शियल राइटर. यस, अभी आई वुड रियली वांट टू हैव अ स्लो जूम, बाद में जब ये एडिट हो रहा हो तो थोड़ा स्टार्ट कर. सो मैं ऐसा कहना चाहूँगी, आई एम नॉट अ कमर्शियल राइटर, बट स्टिल आई एम अ राइटर एंड आई राइट. माई नेम इज रत्नप्रिया गुप्ता एंड आई हैव अ बुक नोन एज हार्ट से दिल तक, which was signed by the Honorable Prime Minister on 16 September 2024. So if you are willing to get some motivation, because there are many poems that are very inspiring, एक टीनेजर के पीओवी से पढ़ना, एक यंग एडल्ट के पीओवी से पढ़ना, एक ऐसे जने के पीओवी से पढ़ना जो लाइफ डिस्कवर कर रहा है, एंड यू विल डेफिनेटली लव इट, बिकॉज आई लाइक राइटिंग इट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई होप आपको पसंद आए. definitely. I mean, I was also having a question about this, but I guess now we'll have to respect the time. पहले मैं बोलता था time is our enemy, but with time I realized time is the money. But time I realized that time is something that we should respect. काल और कला, इन दोनों की one of my मूल मंत्रास in life, काल और कला की रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़नी चाहिए. So yes, that's true. And you know, like मैं क्वेश्चन ही भूल गया. एक सेकंड, फोकस yes, फोकस करो, टाइम कम है, जल्दी फोकस करो. Okay, so you know, like this conversation is very interesting. अब आपने मैं यही पूछा था कि हाँ, कि अब ये तो दो चीज हो गई जो एज ए राइटर यू नीड टू हैव, कि बैलेंस, एंड यू शुड नॉट बी हैविंग दैट लालसा, वो ग्रीड नहीं होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लेट्स से मैं आपके पास एज एन एस्पायरिंग ऑथर आता हूँ, लेट्स से मैं 10 साल का अपूर्व झा आपके पास आ रहा है, पूछ रहा है कि दीदी आई वांट टू बी अ राइटर, आई वांट टू राइट, एंड मेरे को एकदम मतलब आप बताओ मैं क्या करूँ. सो व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस यू गिव मी एज एन ऑथर. आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये चीज़ तो करो, एंड क्या एडवाइस दोगे कि ये करो एंड यू विल बी अ गुड ऑथर. जस्ट वन थिंग इफ यू हैव टू से. होल्ड इट. ओके. This will never leave your hand. Very as long as you do not drop this will never leave your hand. It will take some time to digest. कलम से महल बनते हैं. This is the foundation. You will not drop it. It will not leave you. This thing will never leave you. And another thing for the viewers, for the people who listen to things like these, कभी भी ऐसे कहीं किसी भी स्टेज पे लोगों से गलती होते आप देखें, या फिर they might mispronounce, they might stutter, or they might get some fact wrong maybe. So always keep this thing in mind that there is a reason why that person is there. पहली चीज आती है रिस्पेक्ट. दूसरी चीज, पहले तो आप वो रिस्पेक्ट करो कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो वहां बैठा है. दूसरी चीज, at least the person is taking the initiative to talk. अगर वो 100 बात बोल रहा है, 100 में से 4 गलत बोल दी उसने, तो फॉरगिवनेस की आदत डालो. डोंट क्वेश्चन दोज 4 थिंग्स कि भाई इसने ये तो हमारे कल्चर के बारे में गलत बोल दिया, इसने ये राइटर का नाम गलत ले लिया, इसने यहाँ पे बॉटल गिरा दी, इसने यहाँ पे माइक गिरा दी. ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से ज़्यादा यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग दैट विल बी योर टेक अवे फ्रॉम द वीडियो. क्योंकि उस बंदे ने जो गलत किया वो आप कमेंट में लिख के चले जाओगे, वो देखेगा भी नहीं तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा आधा घंटा वेस्ट हो गया क्योंकि तुमने वो 4 चीज निकालने के चक्कर में 96 मिस कर दी. सो यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन फाइंडिंग दैट वन एलिमेंट rather than finding things कि इसमें से कहाँ मैं कमी निकाल सकता हूँ.
So as a writer, कमी कम निकालो and be more focused on learning your value and don't leave this. It will always help you get through. Wow. And yes, so with that, I guess that's a very strong concluding statement for us today. Before wrapping up this exercise we have done, would you like to start? Yeah, me, I think I would want you to start. Okay, 'Cause, chalo, ठीक है. yeah. Okay, not an issue. ठीक है. So from the conversation that I had with you, one thing that I think that you are very peaceful personality. आपका एक बहुत वैसा जो बोलते हैं ना, एक वाइब्रेशन एक इंसान की होती है. आज हम ऑरा बोलते हैं, ठीक है. And I am so like sometimes I want to say कि आजकल की generation, but I am that आजकल की generation. तो I नहीं can't बोल say. सकते shit man. कोई बात नहीं. जनरेशन में जनरेशनल गैप आ रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन. A very peaceful vibration you are having. Had an amazing, like this conversation was very deep, and I guess this showed कि you have that clarity about what you are writing. You're having the clear sense of imagination कि हाँ मैं लिखूंगी, मैं अपने आप को एकदम संतुलन में रख के लिखूंगी, मैं अपनी सारी एनर्जी, मेरी मॉम ये बोलती कि converge your energy into one thing rather than diverging into many things. That was ये एक अलग ही कहानी है, उसके लिए अलग से 2 घंटे लेने पड़ेंगे, but yes. And you are also very creative, I feel. आपके मैंने बहुत ऐसा like throughout the conversation जो witty, that slight humor, that witty jokes, it's amazing. क्या creativity है. So that is one thing I noticed, and again clarity of your way of our culture, of the concepts of our culture way. That is what I got from you, and yes, you're very learned about our culture, and yes, you really present it in a very beautiful way, if I have to say. So yes, that's my summary of Amazing. yours. Thank you. I think for Apurv, I would say that you're a very active listener. You like to listen as much as you like to speak. And you're articulative because I found your questions very precise. You might take time to reach to the question, but that is because you have a chaotic mind. You have hundreds of questions at the same time. And because of that, you are trying your way hard to navigate through the 100 questions and find that one कि यही पूछूंगा अभी तो. Yes. But you are still very attentive, and you're courageous enough to take this initiative. Also, the part where you mentioned about a small failure of your project, that shows how courageous you are to take risks. And you do not falter to accept your mistake that कुछ गलत हो गया होगा उस project में maybe. And you're very shy in making eye contacts. That is something that I realized. Okay. And you're really passionate for your work and you appreciate your culture. And that is one thing that I always like in people, if they hold on to their roots. Thank you so much. So happy to hear that. Always ऐसा देखो, I'll be very honest. If किसी को अगर मेरे को खुश करना है ना, बस तारीफ कर दो 2-3 ऐसे, लेकिन स्टैंडर्ड इज द बार इज सेट हाई. मतलब ऐसा बहुत आर्टिकुलेटेड होना चाहिए तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा, वरना तो तुम जाओ यार, पोहे खाओ बैठ के फिर, और क्या मैं बोलूं. But yes, with that we are at the end of this episode. Before going, Ratnapriya, any message for our Wowsome listeners? Oh wow, so There is no sweet. message. I am the message. I am here. अब सब अच्छा होगा. अगर नहीं हुआ तो डोंट टारगेट मी, बिकॉज एक अच्छी चीज ढूंढो कि मैं आई. अब आगे गलत होगा, डोंट फाइंड द मिस्टेक. मैं तो चली जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है, अब आगे तुम झेलो. अच्छा, हेलो बैटमैन, बैटवुमन, व्हाट, क्या मतलब ऐसा. कॉल मी इफ यू नीड हेल्प, आई विल राइट स्क्रिप्ट्स फॉर यू. मैं करूंगी कुछ. ये एकदम से राइटर से आप सुपर हीरो की पर्सनालिटी पे आ गए, बट नो, दैट्स अमेजिंग. Thank you so much, everyone, for tuning into this podcast. And we are thankful to Bazuki Perfumes, our gifting partners, for being with us. They feel amazing, they smell amazing, and they look amazing. You can see it over here only. And yes, with that, we are at the end of this episode. Thank you so much, everyone, for tuning in. I'm your host and host, Apurja, signing off. I'll meet you in the next episode. Till let's see.